Good morning student, welcome to online classes. Student, today we are going to turn on class 8 subject maths exercise 1.3. First of all, today we will get study to get about the multiplication properties and properties of division. So firstly today we will read students, so let's see about the properties of multiplication. There are 7 type of properties of multiplication. So first property is closure property. Closure property. Closure property. The product of two rational number is always a rational number. If two rational number, for example, two by 3 into and 5 by 6, two rational number, then the product 2 by 3 into 5 by 6, then 10 upon 18, it is also a rational number. Clear hai? So this is closure property. The product of two rational number is always a rational number. Now second property is commutative property. Commutative property is if two rational numbers are multiplied in any order, their product remains same. For example, let us consider two rational number minus 5 by 7 and minus 14 by 15. Product of this rational number minus 5 by 7 and minus 14 by 15. 5 3 is 15, 7 2 is 14, it means 2 by 3, and its order change minus 14 by 15 into minus 5 by 7, 5 3 is 14, 7 2 is 14. The result will be same. If two rational numbers are multiplied in any order, the product remains सेम. क्लियर है. थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर रैशनल नंबर रिमेन्स द सेम इन वॉट एवर मैनर दे आर ग्रुप्ड. Let us consider three rational number. If 5 by 6, 7 by 8 and minus 8 by 9. They can be grouped as minus 5 by 6 into 7 by 8 into minus 8 by 9. Then we get 8 से 8 कैंसल हो गया, 7 5 जा 35,
upon 9 6 54, and group is changed. -5/6 into 7/8 into 8/9. 7 5 जा 35, 8 6 जा 48 into -8 upon में 9. 8 6 जा 48. Then we get 35 upon में 54. Clear है? It means so we can say that answer remains the same in whatever order the number of arrange. फोर्थ है आपका आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 1 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Consider the rational number 5/4 into 1. It means get a 5/4. क्लियर है? मतलब अगर हम किसी भी नंबर का 1 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रिटर्न में हमें वापस से मिल जाता है. फिफ्थ प्रॉपर्टी है एवरी रैशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट विल बी 0. इट मीन्स अगर हम किसी भी रैशनल नंबर का या किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 ही रिजल्ट में मिलता है. ठीक है. छठवा है एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? For every non-zero rational number, there exists a rational number such that the product is always 1. This rational number is called the multiplicative inverse or reciprocal. It means let us consider the rational number 11/12 and product is their reciprocal. तो 11/12 का reciprocal क्या हो जाएगा? 12/11 कैंसिल हो गया. It means we get 1. 12/11 is called the multiplicative inverse or the reciprocal of the 11/12. सेवेंथ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इफ़ वी हैव 3 रैशनल नंबर देन रिजल्ट इज सेम. यहाँ पे भी जो ग्रुपिंग करेंगे आपका जैसे हमने उसमें अभी किया था आपका एसोसिएटिव में, उसी तरह से इसमें भी प्रॉपर्टी जो है आपको ग्रुपिंग की ही तरह लेना है और उसमें भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा. फिर इसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिवीज़न. प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न में आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपने 2 रैशनल नंबर लिया है, इफ़ 2 रैशनल नंबर्स देन डज नॉट इक्वल टू ईच अदर. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल let us consider 2 rational number 3/7 and 9/14. Then 3/7 divide by 9/14 and 9/14 divide by 3/7 does not equal to, because 3/7 into 14/9 and 9/14 into 7/3. 3 3s are 9,
7 to the 14, 3 get 2 by 3 and 7 to the 14, 3 3 is 9, this is 3 by 2, this is does not equal to. क्लियर है? इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ये तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इफ़ एक्स अपॉन वाई एंड पी अपॉन क्यू आर टू रैशनल नंबर देन इट्स डिवीज़न इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है। थर्ड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपसे कह रहा है इफ थ्री रैशनल नंबर, this shows that the commutative property and associative property does not hold good for division of rational number। associative property में भी जब आप ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो जो उसके रिजल्ट हैं वो आपके सेम नहीं होंगे। ठीक है। तो so let us see the first question of your exercise 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है fill in the blanks। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए सब लोग अपनी बुक में। पहला है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स डैश इज़ 1। अगर किसी भी प्रोडक्ट का रैशनल नंबर और उसका इन्वर्स हम लोग कर दें तो वो आपके किसके इक्वल आता है, 1 के। अभी हम लोग ने देखा था ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो किया था 11/12 और इसका इन्वर्स अगर हमने 12/11 कर दिया यानी रेसिप्रोकल तो ये हमको क्या मिल रहा है, 1। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फर्स्ट वाले में फिल कर लीजिए। सेकेंड देखिए बी, 1 and -1 are only two rational number which are their own reciprocal। 1 और -1 ही ऐसे दो रैशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही है। तो आपका सेकेंड वाले में होगा 1 and -1। सी पार्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये आपका हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें उनका रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। फिर डी वाला पार्ट देखिए, व्हेन वी डिवाइड अ रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर वी गेट अ रैशनल नंबर। डी में क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। फिर ई पार्ट देखिए, एवरी रैशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव द प्रोडक्ट इज। अभी हमने बताया कि किसी भी रैशनल नंबर या फिर कोई भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। फिर एफ वाला पार्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर रैशनल नंबर रिमेन्स सेम इन वॉट एवर मैनर दे आर ग्रुप्ड। दे आर ग्रुप्ड। Now the next question is write true or false। देखिए, द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर डज नॉट होल्ड गुड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए होल्ड कर रही है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट मीन्स फॉल्स। पहले वाले में फॉल्स। सेकेंड, the commutative property and associative property of multiplication of rational number hold good, this is true। सी वाला पार्ट देखिए, the commutative property and associative property of division of rational number hold good, नहीं, डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है, इट मीन्स दिस इज फॉल्स। सी वाला आपका फॉल्स है। डी पार्ट देखिए, for every non-zero rational number there exists a multiplicative inverse, true। इसके बाद ई वाला पार्ट देखिए, 0 has no reciprocal, false। and last, reciprocal of 1 is 1। now the next question है आपका वेरीफाई। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 इंटू 5/7 इक्वल -5/7 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 इंटू -5/7 है और इक्वल में -5/7 इंटू 4 है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। इट मीन्स ये वेरीफाई होगा। देखिए 5 4 जा 20 अपॉन में 7, इधर भी -5 4 जा 20 यानी -20 अपॉन में 7। क्लियर है? LHS इक्वल RHS। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो आप लिखेंगे, इसका नाम भी आपसे पूछ रहा है तो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर बी वाला, बी पार्ट आपका दिया है -3/8 इंटू कर्ली ब्रैकेट -5/9 इंटू 18/20 इक्वल -3/5 3/8 इंटू -5/9 इंटू -18/20। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करिए। देखिए आपका दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ रही है तो ये हो जाएगा आपका -3/8 इंटू ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। देखिए -5/9 इंटू -18/20 यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल -3/8 इंटू -5/9 इंटू -18/20। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका आ गया -3/8 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 1/2 और इधर हो जाएगा आपका, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 यानी यहाँ हो जाएगा आपका 5/24 इंटू -18/20 और देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 6 जा 80 और 3 8 जा 24 और कटेगा ये देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे कितना हो गया 3 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और यहाँ पे देखिए वो भी यहाँ पे माइनस लगाया तो -3 1 जा 3 और 8 2 जा 16। देखिए दोनों साइड जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी 3/16 सेम आ रही है ना। ये लिखने के बाद ये इक्वल यहाँ पे लगा के इसको लिखिएगा, फिर नीचे वाली लाइन आपकी ये है इक्वल ये वाला पार्ट है। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, पता है ना अभी, यानी जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आता है।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहला क्वेश्चन है 2/7, फिर है आपका -20, फिर है -7/8 और है -5 5/-8 5/-8। देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7/-2, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 7/-2। फिर देखिए 20 का करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा यानी 1/20। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसको करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा -8/5, यानी उसका हमको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। और ये वाला जो है एक और बचा है, देखिए -3 × -4/7, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/7। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7/12। क्लियर है। देखिए इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वाला देखिए आपको दिया है -22/23 × 19/20 इक्वल 19/20 × डैश, ठीक है। फिर सेकेंड है आपका -7 × -8/50 इक्वल -8/15 × डैश। फिर है आपका तो यहाँ पर पहले देखिए आपको ये दोनों समझ लीजिए, ये दिया है 22/23 और ये दिया है 19/20। यहाँ पर आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, तो ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिख रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा गया था A × B = B × A, यही होता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो देखिए यहाँ पर अगर 22/23 है, यहाँ 19/20 है, तो देखिए अगर हम इसको ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो 19/20 तो यहाँ क्या नहीं है आपका, तो ये आपका हो जाएगा -22/30। क्लियर है।
पे देखिए यहाँ भी वही प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, 7 इंटू माइनस 8/15 है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑर्डर तो जब चेंज कर देंगे तो ये वाला तो इंटीजर है फिर, लेकिन ये वाला नहीं है, तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा इंटू -7। फिर देखिए थर्ड वाले में 13/7 इंटू -13/8 इंटू 12/7 यहाँ पर इक्वल टू 10 इंटू 13/8 इंटू 12/7। देखिए ये आपका एसोसिएटिव है, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी है, इसको इसके साथ लिया था फिर ये अलग था, अब यहाँ पे देखिए इसको कंबाइन कर दिए हैं और ये फिर क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर आपका क्या फिल हो जाएगा 13/7। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सारी प्रॉपर्टी को एकदम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी जो आपको स्टेटमेंट दी है वो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्रू है तो यानी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं, इसे आप लोग कर लीजिएगा। Tomorrow we'll meet again with a new exercise 1.4. Thank you. Have a nice day.